Good morning, students. Today we are studying about the 5 marks. The question that had come in the month of the March 2023, describe the various anti-corruption laws. What is this anti-corruption law? Anti means discouraging, opposing. Anti is opposing. Okay, and corruption. The dishonest behavior. The dishonest behavior. Who are in powers. Who are in powers. We are studying about the anti-corruption. Anti meaning is opposing or discouraging. Corruption, the dishonest behavior, the people who are in power. Okay, this is for the 5 marks. It's important. So after the independence in the year 1947 till 1988, we struggle a lot for the years of 41 years. After independence, there were a lot of corruption, favoritism, bribery, everything was there. But no one has gone to that side and there was no alertness in the people of India. Whatever is going on, let it go. But the time came in the year 1988. In the year 1988, this has been done, the Prevention Act. So I'm going to write the important points. You can take down. Several measures have been taken down measures for anti-corruption. On different levels. On different level also. Different level. There are several measures for the anti-corruption, but what are the different levels? See, the Prevention Act. Prevention of Corruption Act in the year 1988. Just now I told that in the year 1988. It is important this year after independence. Just now I had explained 1947 for 41 years. No acts was there. So in the year 1988, the people were elected. The government of India started the Corruption Act in the year 1988. So the people who were taking the bribery and corruption in this year 1988, they started, whoever are doing these things, they were liable for the punishments. In 1988 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्टार्ट करी, जो कोई भी फेवरेटिज्म कर रहे या ब्राइबरी कर रहे उनको पनिश किया जाता था. ये एक्ट के अंदर ले लिए थे लोग को. It is formed and implemented for the corruption in the public life. Favoritism. Some bribery. And intermediaries also. And intermediaries. These were liable for punishment. These were liable for the punishment. IPC. What is this IPC?
IPC means Indian Penal Code. Indian Penal Code. In this Indian Penal Code, the public servants who have involved for the corruption, they were punished. In IPC, the public servants. Public servants means what? The people who are working under the government. जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, यानी जो इसका जॉब गवर्नमेंट के अंडर है, जो कोई भी करप्शन कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, उनको इसमें आईपीसी के तहत वो लोग को पनिश, हाँ, जो कोई भी कर रहे हैं तो। और एक और एक्ट है 2002 में पास हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में पास हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मीन्स जो लोग पैसे लिए हैं, गरीब लोग, उनको ये जो मनी लेंडर्स है एक्सप्लॉइट करते थे, टू स्टॉप फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल exploited by the money lenders। जो पैसे देते हैं उसको लेंडर्स बोलते हैं। ओके, फिर से एक बार पढ़ेंगे और थोड़े से एक्ट से वो लिख देती हूँ, फिर मैं अंडरलाइन करके एक और बार एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में पास हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट in the year 2005. In this act, filing case of against corruption. In this act, filing the case against corruption. Filing case against corruption. ये एक्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन, RIT, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में केसेस कर सकते हैं करप्शन के अगेंस्ट बोल के ये एक एक्ट पास हुआ था। एक और विजिल ब्लोअर्स बोल के है, ये 2 मार्क्स के लिए है, फिर मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। Several measures for the anti-corruption at the different level. In the year 1988, Corruption Act was passed for the first time in India. And one more thing, Maharashtra is the first state that comes for the corruption. Prevention of Corruption Act in the year 88, favoritism, bribery, and intermediaries, these all are liable for the punishment. One more, IPC, Indian Penal Code. This for the public servants, जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, अगर करप्शन कर रहे हैं या रिश्वत खा रहे हैं तो उनको भी ये इसके तहत पनिश किया जाता था। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पुअर पीपल, बाय द मनी लेंडर्स, जो कोई पैसे दे रहे हैं वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे गरीबों को। दिस वाज द एक्ट फॉर द पुअर पीपल 2002। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, दिस वाज पास्ड इन द ईयर 2005 फॉर फाइलिंग द केस अगेंस्ट द corruption. 2 marks, it is important. Whistleblowers, what is this whistleblowers?
It had come in the exam March 2023. Whistleblowers means these people work in the public place and the public offices to expose the people who are doing wrong things, who are corrupting, who is taking bribery. And these whistleblowers alert the people in India who expose the corruption. Whistleblowers are the people. ये ऐसे लोग हैं जो करप्शन को बाहर लेके आते, पब्लिकली लेके आते, उनको whistleblowers कहते हैं. Who expose the people who are taking corruption, who are doing corruption, and alert the people. ये विजिल ब्लोअर्स का काम ही ये है कि वो पब्लिक ऑफिसेस में जाके ये करप्शन जो भी हो रहा है पूरा पब्लिकली लेके आते थे, पूरे मीडिया पे छा जाते ये विजिल ब्लोअर्स. तो ये विजिल ब्लोअर्स के हेल्प से कई लोग पकड़े गए करप्शन के, जो भी कर रहे हैं ब्राइबरी, फेवरेटिज्म, ये सारे गलत काम है. So you can copy it down or take the screenshot. It's for only 2 marks and this is for 5 marks. मैम उधर के एक लाइट बंद कर दीजिए, बोर्ड में दिख रहा. मैम राइट साइड का ऊपर का नहीं दिख रहा मैम, राइट पार्ट इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर. I'm rubbing the board. Let's go for the 5 marks. One more important is there. We are going to study about the 74th amendment of the Constitution. But in exam, we were having the 73rd amendment. What is this, the meaning of the amendment? In the first chapter also, I have explained about the amendment. 5 marks. Amendment. Amendment means changes. What changes? Whatever is going on in the Constitution, if we need some changes, then we'll go with the amendment. एक बिल पास होती है, वो जब बिल पास हो गई तो उसको एक्ट कहते हैं.
कुछ भी अगर चेंजेस लाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है, इतना डिटेल्ड है, कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए चेंजेस हम ला सकते हैं अमेंडमेंट के द्वारा। पहले earlier we were not having the development of local and urban and rural areas. So the government of India wants to bring the development in the rural and urban areas. So what the government can do? So the government had amendment the constitution, that is 73rd and 74 in the year 1992. Let us study about the 74th amendment of the constitution in the year 1992. First, I am going to tell about the what is 73rd amendment and the 74th amendment. Basic idea you'll get. 73rd and 74th amendment. 73rd amendment, it was of rural. 74th amendment of urban. Rural means village. Urban, towns. After independence, 1947, we got independence. Till 1992, there was no development of rural and urban areas. So ये कहते हैं ना, गांव से ही शहर बनते हैं। तो जब हमारी सरकार को याद आया गया कि गांव से ही शहर बनाना होगा, क्योंकि जो भी शहर है आज, whatever the cities are there present incumbently, earlier they were the villages. पहले विलेजेस थे, गांव थे, गांव जाके ही शहर बने। उससे पहले सरकार को याद नहीं था या समझ नहीं आई, तो 1992 में चेंजेस लाए, इफेक्ट लाए। 1947 से कुछ चेंजेस नहीं था। सो 73rd एग्जाम में था, 74th हम आज पढ़ेंगे। 73rd का रूरल को बिलोंग करता और 74th का अमेंडमेंट अर्बन को बिलोंग करता। क्लियर? So we'll go with the 74th amendment of the Constitution. Seventy-fourth amendment. Of the Constitution in 1992. So let us study the main provisions. Main provisions for the year 1992. What are the main provisions? I told you that 74th amendment was of urban. Clear, students? Urban. So it gave the constitutional status for the urban development. ये एक कॉन्स्टिट्यूशन से देने से क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंस मिल गई उसको अमेंडमेंट लाने के लिए। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर अमेंडमेंट। Clear? There shall be 3 types of municipalities. 3 types of municipalities है। 3 types of municipalities. अब ये 3 types क्या है? Let us study. अर्बन डेवलपमेंट में 3 टाइप्स है, क्योंकि ये टाउन को बिलोंग करता। ओके, ये 3 चीजें क्या है यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इज नगर पंचायत,
And second is for municipal council. And the third one is municipal corporation. Municipal corporation it is. 74th amendment के बारे में है ये constitution. In the year 1992 अर्बन और टाउन के डेवलपमेंट के बारे में है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है फॉर अमेंडमेंट, चेंजेस लाए. और कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज है 74th अमेंडमेंट में. अर्बन है और टाउन का है. वो 3 क्या है? ये नगर पंचायत फॉर टाउन. ये क्या है? नगर पंचायत सिर्फ टाउन के लिए है. अब ये म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? ये स्मॉल टाउन्स के लिए है, स्मॉल टाउन्स के लिए है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? ये लार्ज टाउन के लिए है, बड़े शहर के लिए, लार्ज टाउन. वैसे इंडिया है ना 3-4 टाइप्स में बांटा गया है. ये जस्ट नॉलेज के लिए. एक तो रूरल है, एक अर्बन है, फिर है सिटी, फिर है मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ये 4 हिस्सों में है इंडिया. सो अब 74th अमेंडमेंट के तहत अपने को ये 3 चीजें हैं, नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज टाउन्स. क्लियर? अब इसके इलेक्शन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है वो देखेंगे. Contesting in the election of the 74th amendment of the constitution. Qualifications क्या जरूरत है इसकी? 20 years complete होना चाहिए. 21 years should be completed. Or voters of the same area, he should be voter of same area. 21 years होना है और ही शुड बी वोटर ऑफ द सेम एरिया. जो एरिया में ठहर रहे हैं इलेक्शन के लिए वो वोट कर चुके होना है 18 years से, 21 years completed होना. एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस, शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट. मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना होगा इनको. ये रिजाइन करना होगा अगर ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो. उसके बाद ही उनको इसमें इलेक्शन में आ सकते हैं. क्लियर? और ये 5 years का टर्म है. ड्यूरेशन क्या है? ये ड्यूरेशन ऑफ 5 years. 5 years के ड्यूरेशन में होता है. अगर इन बिटवीन कोई अगर छोड़े हैं सीट या डिमाइज हो गए हैं तो within the period of 6 months again there should be the election. They should not exceed the period within 6 months. 6 months के अंदर ही फिर से रीएलेक्ट करके वो प्लेस को फुल कर सकते हैं. जो प्लेस वैकेट हुई, खाली हुई है, विदिन द 6 months ऑफ द पीरियड फुल कर सकते हैं. ड्यूरेशन 5 years है. और यही एक्ट के तहत एससी
और ST को, SC मीन्स शेड्यूल कास्ट, SC is scheduled caste and ST is scheduled tribe. शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है एंड रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स, फॉर वुमेन, वो भी 1/3 सीट्स। ये सीट्स रिजर्वेशन किया गया है यही एक्ट के तहत फॉर द वुमेन्स, दैट आल्सो इट इज 1/3। ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इन लोग के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है, नॉट ओनली इन स्टडीज इवन इन द जॉब्स। पढ़ाई में ये लोग को रिजर्वेशन दिया गया है एंड जॉब्स में भी ये लोग को रिजर्वेशन दिया गया है 74th अमेंडमेंट के तहत। 74th अर्बन है एंड 73rd रूरल के लिए है, गांव के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन 1/3 ही दिया गया है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इट इज पावर्स एंड फंक्शंस, वो 12th शेड्यूल में है। 18 आइटम्स दिया गया है 74th अमेंडमेंट के लिए। Okay, students, you can take the screenshot. Here I'm going to rub. Powers and functions. In this 12th शेड्यूल से लिया गया है, 12th शेड्यूल। इसमें क्या क्या है पर्स, ये लोग किन किन चीजों का देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में हॉस्पिटल्स एवरीथिंग आते, सैनिटेशन साफ सफाई, रोड्स, ब्रिजेस, infrastructures, roads and bridges, sanitation, public health, fires, fire and safety, ये सारे चीजें पावर्स एंड फंक्शंस में हैं। किसके, ये जो 74th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसका जो हेड है नगर पंचायत, नगर पालिका और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये जो सारे हेड्स है उनके हाथ में ये पावर्स दिया गया है, ये 12th शेड्यूल में है। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, 1992 में जो चेंजेस लाए पर इसका इफेक्ट केम इनटू फोर्स in the year 1993 में इफेक्ट में आया, came into force in the year 1993। इस समय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये पावर्स एंड फंक्शन 12th शेड्यूल में है और ये फोर्स कब में 1993 में आया, अमल में कब आया, 1993 में इसका वर्कआउट किया।
मगर 1992 में ही चेंजेस लेके आए, अमेंडमेंट्स लेके आए, पर वर्कआउट 93 में हुआ। मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग दिस, पीवी नरसिम्हा राव, he at that time he was the prime minister of India. Copied students, I am going to rub the board because we have to go with the 10 marks question. Formation of the Telangana state. For 10 marks, we'll go with the important formation of Telangana state. Of Telangana state. It's very important. Your paper will not be completed without this question. It is of 10 marks. So do you have any idea formation of the state? So Telangana is the 29th state. It is very youngest state in India. So we'll go with the basic idea. We'll go for in the past first. After independence, 1947, there was all states in South India merged with each other, combined states. कर्नाटका और आंध्रा दोनों स्टेट्स मिलके ही थे। तो 1953 से कोशिश चल रही थी कि तेलंगाना को एक अकेला रखना है बोल के। When the year 1947 जब इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, तभी निजाम चाह रहे थे कि हैदराबाद को एक अलग ही रहना। 1947 में निजाम ने कहा था कि ये या तो यूनियन टेरिटरी बनाए या तो अलग ही रखे, क्योंकि वो निजाम अपने अंडर रखना चाह रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे। फिर एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू और सारे अदर लीडर्स मिलके कोशिश करके निजाम के अंडर से ले लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट 1953 से कोशिश कर रहे था फॉर द लॉन्ग स्ट्रगल आफ्टर 60 इयर्स की कोशिश कामयाब हुई 2014 में, जब तेलंगाना अलग हुआ। 1956 में 1956 1 नवंबर को आंध्रा एंड कर्नाटका अलग हुए। तो पहले हम 1914 से पहले एपी फॉर्म्ड डे बोल के मनाते थे 1 नवंबर को। 1956 1 नवंबर को एपी और कर्नाटका अलग हुए थे। ये दो स्टेट्स 1956 1 नवंबर को अलग हुए। 1956 से बहुत सारी कोशिशें किए थे कि तेलंगाना और आंध्रा को अलग करने की, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लीडर्स कोशिश करे, पर उसके लिए क्या करे, यहाँ के तेलंगाना के लोगों को ऐसा दबा दिए, नए नए एग्रीमेंट्स और कमिटीज बिठा के बहुत सारे कोशिश करे। अब इंशाल्लाह वो अपन देखेंगे। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट एक इम्पोर्टेंट है, ये जेंटलमैन्स अग्रीमेंट, ये एक अग्रीमेंट हुआ था ये सोच के तेलंगाना के पीपल्स को
पानी की प्रॉब्लम, फंड्स की प्रॉब्लम और जॉब्स की प्रॉब्लम, स्टडीज की प्रॉब्लम, ये सारे फेस कर रहे थे। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट में क्या कहा था कि 40-60 40-60 क्या है? ये 40 रिजर्वेशन सीट्स फॉर तेलंगाना के लोगों को देंगे, तेलंगाना की पब्लिक को, और ये 60 है ना, एपी के लोगों को देना कि ये सोचे थे अगर 40% रिजर्वेशन सीट्स या जॉब्स हो, कुछ भी हो, 40% तेलंगाना को दिया जाएगा और 60% एपी के लोग को दिया जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। और अगर चीफ मिनिस्टर सीएम तेलंगाना का हो तो डेप्यूटी सीएम एपी का होना चाहिए। वाइस वर्सा का मीनिंग, अगर डेप्यूटी सीएम तेलंगाना का हो तो सीएम एपी का होना हो। ऐसे ये सारी चीजें जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में कहा गया था, पर इसको कोई फॉलो नहीं किए थे, ये फेल हो गया। और एक 12 इयर्स ऑफ मुल्की रूल, 12 इयर्स ऑफ मुल्की रूल, इसमें भी कहा गया था कि जो कोई 12 इयर्स से ज्यादा रह रहे हैं तेलंगाना में तो वो तेलंगाना के हो जाते हैं और उनको भी जॉब दिए जाएंगे, स्टडीज में रिजर्वेशंस रखेंगे। पर ये सारा फेल हो गया, ये वर्कआउट नहीं हुआ। तो ये भी एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो फेल हुआ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना को फॉर्म करने के लिए। और जितना भी इनकम आता था ज्यादातर एक्सपेंडिचर एपी को जाता था। इनकम कैसी होती है गवर्नमेंट की? थ्रू द टैक्सेशन, टैक्सेस के द्वारा इनकम होती गवर्नमेंट की। वो टैक्सेस जो भी जमा होते थे, एक्सपेंडिचर, खर्च ज्यादातर एपी को करते थे, तेलंगाना के लिए नहीं, और तेलंगाना के लिए रिजर्वेशंस नहीं थे। ओके, आई एम रबिंग दिस। Next, we'll go for the thing. According to the Article 3, Article 3 के तहत ये कोशिश की गई थी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल, एक बिल पास की गई थी कि तेलंगाना को आंध्रा से अलग किया जाए। वो बिल एपी के लेजिस्लेचर में रिजेक्ट की गई। एपी के लेजिस्लेचर में ये बिल को रिजेक्ट किया गया है। पर पार्लियामेंट में ये बोथ द हाउसेस के पास फिर से वो बिल भेजी गई। बोथ द हाउसेस कौन से हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। ये बिल फिर से भेजी गई पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की मर्जी है, वो रिजेक्ट करो और एक्सेप्ट इट, पार्लियामेंट की मर्जी है। तो ये बिल जो है फिर से दोनों हाउसेस में भेजी गई थी, इसलिए रीऑर्गेनाइजेशन बिल हुआ। पहले एपी के लेजिस्लेचर में रिजेक्ट कर दिए थे कि अलग नहीं करते बोल के, मगर पार्लियामेंट में फिर से भेजी गई, बोथ द हाउसेस में पास हो गई और एक्सेप्ट हो गए। उस टाइम पे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है ये बिल पास करना। मैं आपको बोली थी कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, he is having the nominal power, he has to sign in all the bills. Prime Minister is having the real powers. So प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पास किया ये बिल को। Okay students, if you want you can write it down.
ये 2014 1 मार्च को हुआ था, बट came into effect 2 जून। अभी 2 जून आ रहा है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे है ये, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को 1 मार्च को कहा गया था, मगर इफेक्ट 2 जून 2014 में हुआ था। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी डिक्लेयर कर दिए थे। यहाँ पे लिखो फैक्टर्स फॉर द हेल्प फॉर द फॉर्मेशन। फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है? फैक्टर्स फॉर द formation of state. This is 29th state. It is youngest state. नॉर्थ इंडिया में जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ये दूसरे स्टेट्स जब अलग हो रहे थे, वो लोग को देखने के बाद तेलंगाना में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आया कि सेपरेट स्टेटहुड तेलंगाना में भी हो, एपी से अलग हो। जब it took क्रूशियल चेंज, क्रूशियल पॉइंट बना एक, कब? जब केसीआर सर जब इसमें पार्टिसिपेट करे अपनी टीआरएस पार्टी के द्वारा। पहले टीआरएस ही कहते थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब बीआरएस हो गई है। नाउ बीआरएस प्रेजेंटली क्या है? इनक्यूम्बेंटली नाउ टीआरएस पार्टी को ही बीआरएस कहा जा रहा है। कब हुआ एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट एक चेंज आ गई? जैसे ही केसीआर के चंद्रशेखर राव सर जब तेलंगाना में अपनी न्यू पार्टी फॉर्म करके इसको स्टार्ट करे थे, उनके आने से एक बहुत चेंजेस आई। और क्या है? इट all walks of life participated, all walks of life participated, that is government employees, GOT, short form government employees, teachers, students, all walks of life यानी सभी लोग, छोटे बड़े, कोई उम्र का लिहाज नहीं, सब लोग ये केसीआर के साथ उनकी पार्टी में ज्वाइन हुए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कौन है ये? और एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे। बहुत से लोग अपने आप को जला भी लिए कि अलग अपने को सेपरेट स्टेट होना। If you want, you can write down. Still few points are there. I'll rub and write here. कितने साल वर्कआउट करे? ऑफ 60 इयर्स की मेहनत के बाद 2014 2 जून में अलग हो गया सेपरेट तेलंगाना स्टेट, इसीलिए 2 जून को फॉर्मेशन डे कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, केसीआर सर क्या करे? फास्ट ऑन टू डेथ करे। इनटू डेथ मीन्स व्हाट? भूखे रहे, आखिरी सांसों पे आ गए थे उन्होंने, तो तब जाके ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बना था। फॉर 9 days, 9 days तक
कुछ नहीं खाए थे. KCR फास्ट इनटू डेथ. फिर एक और चीज थी कि श्री कृष्णा कमिटी बनाए थे. श्री कृष्णा, ये सारे पॉइंट्स हैं. ये सारे पॉइंट्स इसलिए है कि फॉर्म कैसे हुआ है तेलंगाना. श्री कृष्णा कमिटी कब हुई, कब स्टार्ट करे? ये 2010 में कि कुछ चेंजेस लेके आए तेलंगाना में. बट ये भी फेल हो गई थी, श्री कृष्णा कमिटी भी. टू टेक इनटू अकाउंट ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. जय तेलंगाना बोल के एक स्लोगन बना. जय तेलंगाना ये जो स्लोगन है इम्पोर्टेंट. इससे बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए. इस पार्टी में बहुत से लोग जुड़ गए. नेक्स्ट, सकला जुनुला सम्मे. इसका मीनिंग क्या है? ऑल पीपल स्ट्राइक. स्ट्राइक में सभी पार्टिसिपेट किए. सकला जुनुला सम्मे बोल के ऑल पीपल स्ट्राइक है. और MLAs MPs रिजाइन करे थे अपनी पोस्ट से. क्यों? क्योंकि वो लोग चाह रहे थे कि सेपरेट तेलंगाना स्टेटहुड हो. ये सारे पॉइंट्स हैं. और हैदराबाद को कॉमन कैपिटल बनाना. कॉमन कैपिटल एंड गवर्नर भी एक ही. कॉमन कैपिटल एंड कॉमन गवर्नर. KCR did the fast on to death and Sri Krishna committee was done in 2010. It took into the account Jai Telangana. This is the important slogan. Sakala Junula Samme, all people strike, and MLAs, MPs resigned. Hyderabad as a common capital and common governor. Okay, students, write it down. These are the important points for your answer for the formation of the Telangana. These are all the important points. When KCR sir came in this party, TRS party, he joined this Telangana. Now it's the BRS party, Bharatiya Rashtra Samiti. All the walks of life means government employees, teachers and students. Main point it was Osmania University people. And one more thing important, it is JACS. What is this JAC? Joint Action Committee. JACS. JACS meaning is Joint Action Committee. This is important point. Joint Action Committee means all the people joined in the work of the separate statehood. JAC student, Kakatiya University, Osmania University, all the people joined together in the formation of the separate statehood. We were getting the problems in the expenditures
The tax was collected in Telangana and AP, but the more expenditure was done on the AP people, but not on the Telangana people. And we were getting the problem of the water also. The reservations more was given for the AP people, but not for the Telangana. All these things were included and this bursted for the separate statehood. You can copy it down. These are the important points. You can write in your answer. 60 years of hard struggle. Formation of the Telangana state. Okay, students. We'll continue tomorrow with the different points, different question and answers.